Okay, first of all, we will be learning about deductions because we have already seen two deduction, that is entertainment, sorry, that is PT and standard deduction. Standard deduction is maximum 50,000 and PT is as per question. If it is deducted, if it is paid by the employee, then it will be considered. Otherwise, it is not considered. Correct. Then we have entertainment allowance, but we have seen entertainment allowance is only for government employee. Correct. So before this, we have not received such question, but now we will purposely take the question where government employee is there and we need to calculate entertainment allowance reduction. Okay. So now we will calculate for this question, and later on we will have some questions, some big questions also. Okay. Let's understand deduction first. Because there is a calculation involved in case of entertainment allowance. डायरेक्टली आप उसको नहीं ले सकते हैं, आपको उसको कैलकुलेट करके एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शंस लेना पड़ता है. ठीक है, ये क्या आ रहा है स्क्रीन पे? Okay, so we'll start with this question now. I'll take the Excel sheet. Zoom in. Okay, we will start with the question directly. Format and all you already know. आपको सिर्फ ऐसे ही कॉपी करना है. Particulars. Amount. Correct. Here I will write income from salary. Okay, I'll underline it. Okay, now look at the question. Question is small only. Let's zoom it. Okay, now it is better. Miss Komal, who is government service, received rupees 50,000 per month as basic salary. So write basic salary first. Basic salary is 50,000 per month. That is 50,000 into 12. Correct. Comes to 50,000 into the, okay, it is 6 lakh. Okay, now and 5,000 per month as DA. Chat में क्या है? Okay, 5,000 per month as DA है ना? So 5,000 per month as DA भी ले लेंगे. DA is always taxable. So it is 5,000 per month. So I'll write 5,000 into 12. Sorry, it is not 500, 5,000. Okay, so it comes to 5,000 into 12. 60,000. Correct. And then we have next is 4,000 per month as entertainment allowance. So entertainment allowance is always taxable. Allowances are always taxable. The only thing is if there is exemption, you need to deduct it. If it is traveling, conveyance, then you can also deduct expenses as exemption. Entertainment allowance is 4,000 into 12. Sorry. 72,000.
मैंने 4,000 48,000 ना, करेक्ट? 8,000. हाँ ओके, 4,000 into 12. Okay, that is done. Now nothing else is there. पीटी आपको पता है डिडक्शन में आएगा एंड कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम सैलरी. ठीक है, इतना ही छोटा सा क्वेश्चन है. नाउ टोटल इट. So till here there was no any difference between government and non-government employee. यहाँ तक कि कोई डिफरेंस होता ही नहीं है. ग्रॉस सैलरी आपको हर जगह सेम ही मालूम करनी है. ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी. तो इनकम फ्रॉम सैलरी तो मिल गया है बट इट इज ग्रॉस. ठीक है, बिकॉज डिडक्शंस होंगी एंड यू नो डिडक्शन कहाँ पर होती है ना? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 होती है. करेक्ट. और क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसको 3 डिडक्शन मिलेगी. फर्स्ट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेकेंड इज एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट एंड देन पीटी, है ना? 3 डिडक्शंस. और इन एनी ऑर्डर यू कैन राइट, ऐसा कुछ नहीं है मैंने ऐसे लिखा है तो आपको भी ऐसे लिखना है. ओके, स्टैंडर्ड डिडक्शन इज फिक्स्ड. कितनी होती है? 50,000. करेक्ट. एंटरटेनमेंट अलाउंस का तो हम लोग को अभी निकालना पड़ेगा अमाउंट. ठीक है, इसके लिए बनेगा वर्किंग नोट. ठीक है, इसके लिए बनेगा वर्किंग नोट. वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे हम लोग इसको. पीटी एज वी नो क्वेश्चन में से देख के लिखना होता है. सो इट इज 2,500. तो मैं वैसे ही उसको कॉपी कर लेता हूँ. ठीक है, और यहाँ पे उसका टोटल आना है. तो अब वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग. और वर्किंग नोट क्यों बना रहे हैं हम लोग? वर्किंग नोट नंबर 1 इज फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, और कभी भी एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो डिडक्शन होगी वो क्या होगी? इट विल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग. लोअर ऑफ द फॉलोइंग. इट विल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, लोअर मतलब इन तीनों में से जो भी रिजल्ट सबसे कम आएगा वो आप लेंगे. ठीक है, 3 केसेस होते हैं. एक तो है आपका मैक्सिमम, हमेशा 5,000 रहता है इसका. मैक्सिमम इज 5,000. सेकेंड, 1/5 of basic salary, and last one is actual. ठीक है, एक्चुअल हम लोग को पता है. ठीक है, ऊपर दिया है 4,000 पर मंथ, तो वही आपको कैलकुलेट करके निकाल लिया था ना हम लोग ने. एक्चुअल इज 48,000. ठीक है, एक्चुअल इज 48,000. ठीक है, अभी 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी कितना होगा बेटा? सर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई. हाँ हाँ कर रहा हूँ, मैंने ऑफ किया. कहाँ है? हाँ यहाँ. एक्चुअली वो एक टैब से दूसरे टैब पे जाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है फिर. ओके, 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी कितना होगा बताइए आप? बेसिक सैलरी कितना है? ऊपर जाके देखना पड़ेगा बेसिक सैलरी कितना है.
6 lakh. Sir, 1,20,000. अब बताओ बेसिक सैलरी कितना है बेटा? दिस इज 6 कॉल्ड lakh. बेसिक। हाँ 6 lakh, sir. हाँ, एंड आई थिंक किसी ने कैलकुलेट भी कर लिया। 6 लाख डिवाइड बाय 5, 6 लाख डिवाइड कहाँ है भाई मेरा? ये डिवाइड है 5, है ना? किसने कैलकुलेट भी कर लिया था 1,20,000। यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ कैलकुलेशन कैसे मैंने लाया है इसका। 6 लाख डिवाइड बाय, मतलब इंटू 1 तो कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी इंटू 1 डिवाइड बाय 5, दिस इज कॉल्ड 1/5, है ना? 1/5 मतलब डिवाइड बाय 5, इंटू 1 करने का कोई मतलब नहीं है। यू विल ऑलवेज डिवाइड इट बाय 5, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 लाख डिवाइड बाय 5 करो, इंटू 1 का आपको पता है, कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। ओके, तो कौन बताएगा इन तीनों में से लोअर क्या है? 5,000, sir. Maximum, sir. 5,000. लोअर, लोअर 5,000, वी नीड लोअर, सो लोअर इज 5,000। 5,000. ओके, वापस से एक बार आपको एक्सप्लेनेशन ले लेना है। इट इज ऑलवेज मैक्सिमम एज पर रूल इज 5,000। आप इससे ज्यादा एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं ले सकते हैं। एज पर कैलकुलेशन 1/5 सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1/5 सैलरी मतलब इट इज 6 लाख का डिवाइड बाय 5, दैट इज 1,20,000, एंड एक्चुअल इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, आई हैव कॉपीड एंड पेस्टेड, देखो यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका 1/5 ये एक्चुअल है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस, और मैक्सिमम इट इज 5,000। ये तीनों में से जो भी लोअर होगा वही आपका क्या होगा? कभी भी एंटरटेनमेंट अलाउंस होगा। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना होगा आपका डिडक्शंस में? 5,000। 5,000. ठीक है, दैट मीन्स टोटल डिडक्शन कमिंग टू 57,500. वेरी गुड, 57,500. वेरी गुड। ठीक है, नाउ योर नेट सैलरी इज आफ्टर डिडक्टिंग दिस डिडक्शन, दैट इज 6,50,500. This is net income from salary. Okay. Any doubt? Any question? No, sir. No, sir. So we have already seen these two deductions earlier, but अब तक के कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिला नहीं था जिसके पास एंटरटेनमेंट अलाउंस हो। सो पर्पसली हम लोग ने एक ऐसा क्वेश्चन लिया जिसके अंदर एंटरटेनमेंट अलाउंस भी है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है। ठीक है, as far as gross income is concerned, there is no difference between government and non-government employee. It is only about deduction. Deduction में जाके आपको सोचना है। फिर बच्चे क्या करते हैं पता है? ऊपर से ही ध्यान में रखते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इट विल हैम्पर योर कैलकुलेशन। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज फार एज योर ग्रॉस इनकम इज कंसर्न। ठीक है, इट इज ओनली अबाउट डिडक्शन, और यहाँ पर वो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है सर, 1/5 कहाँ से लिया बेटा? 1/5 हमने बेसिक सैलरी का लिया, 6 लाख का। ठीक है, बेसिक सैलरी हमारा 6 लाख है, उसका मैंने 1/5 लिया। ठीक है, तो 6 लाख डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो ये आपका 1/5 है। तो शायदा ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसको आंसर कर दिया। मैं तो बच्चे बोलेंगे सर बीच में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली आपको किसी के चैट दिखते नहीं, मुझे ही दिखते हैं सर। ये था शायद इलस्ट्रेशन नंबर 6.1। ओके, 6.1। ठीक है, और इस पे मैं लिख देता हूँ कि दिस इज ओनली फॉर डिडक्शन। सो एक्चुअली मुझे आज स्टार्ट करना था ग्रेचुइटी के साथ में, बट नो प्रॉब्लम, डिडक्शन तो पहले ही हो जाना चाहिए ग्रेचुइटी से, तो आई टुक दिस फर्स्ट। ये स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि एक टैब से दूसरे टैब में जाने के लिए प्रॉब्लम होती है फिर। ओके, सो I have forwarded this to your group and we will take one more question. I have not shared the screen now. Wait, मुझे दूसरा क्वेश्चन लेने दो, उसके बाद मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये दूसरा जो क्वेश्चन है, अगेन इट इज ऑन 2 pages.
की जरूरत नहीं। Okay, so now we will be moving on to the first part, that is our gratuity. ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं मिला मुझे, बड़ा वाला क्वेश्चन नहीं मिला, बट अभी जब हम लोग ग्रेचुटी करेंगे तो वो भी आएगा, क्योंकि उसके अंदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम लोग दोनों ही देखते हैं। ठीक है, सो आई विल शेयर द स्क्रीन, वर्ड डॉक्यूमेंट ले लूं। ओके, सो बहुत घूमना पड़ रहा है, शेयर करना है। ठीक है, so we will be first talking about the pension part because it is very simple. This is the only reason we will take first pension, and pension के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि पेंशन आपको पता है ना। पेंशन कब मिलता है बोलो? After the retirement. ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट आपको पेंशन मिलता है, जबकि ग्रेचुटी आपको ड्यूरिंग द लाइफ टाइम में मिल सकता है, बट पेंशन आपको पता है, इट मे बी मंथली, है ना, इट मे बी कम्यूटेड, इट मे बी अनकम्यूटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कम्यूटेड और अनकम्यूटेड के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड एक ही हमें लगता है, ठीक है, अनकम्यूटेड पेंशन। ठीक है, ये फिर भी रॉन्ग दिखा रहा है, स्पेलिंग करेक्ट। अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है मंथली पेंशन जो आपको मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। और कम्यूटेड का मतलब क्या होता है? कम्यूटेड पेंशन, इट इज लमसम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एट वंस आपको मिलता है। ये ऐसे क्यों बता रहा? ठीक है, मतलब ये जो है आपका जो पेंशन है, ये मंथली आपको मिलेगा, और कम्यूटेड जो है ये आपको कब मिलेगा? एक साथ में मिल जाएगा। मतलब आपको अगर मंथली नहीं चाहिए तो आप उसको क्या कर सकते हैं? कम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, कम्यूट कर सकते हैं मतलब एक साथ में रिसीव करने के लिए आप बोल सकते हैं कि मुझे एक साथ में ही चाहिए, आपको मंथली नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट आपको एक ही साथ में मिल जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड कम्यूटेशन। ठीक है, आपने उसको कम्यूट कर लिया है। और अनकम्यूटेड जो होता है वो मंथली पेंशन आपका होता है। ठीक है, अब अनकम्यूटेड पेंशन इज ऑलवेज टैक्सेबल वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉट। ठीक है, ये जो आपका मंथली पेंशन है ना, ये हमेशा टैक्सेबल होगा, चाहे कोई भी टाइप का एम्प्लॉय हो। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ठीक है, इट इज ओनली अबाउट योर कम्यूटेड पेंशन, जो कि क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? अनकम्यूटेड पेंशन जो है वो आपका हमेशा टैक्सेबल होगा, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। अनकम्यूटेड पेंशन जो है आपको मंथली मिलने वाला जो पेंशन है, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल, चाहे आपका एम्प्लॉय कोई भी हो, उससे लेना देना आपको नहीं है। ठीक है, इफ इट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय और आपने
पेंशन को क्या किया है, कम्यूट किया है, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में इट इज फुल्ली एग्जाम। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में इट इज फुल्ली एग्जाम। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में it is further divided into two parts. If gratuity is received, तो कितना exempt होगा? Exempt is equal to 1/3 of the full commuted value, ठीक है। और अगर ग्रेचुटी नहीं मिला है तो if gratuity is not received, gratuity is not received, then half of exempt is equal to half of the full commuted value, ठीक है। सो इसको थोड़ा ब्रेक देते थे so that okay, what you need to understand is uncommuted pension is always taxable। जो मंथली पेंशन मिलेगा ये हमेशा टैक्सेबल होगा, ठीक है। इफ commuted pension in case of government employee it is fully exempt, okay, and in case of non-government employee if gratuity is received it is half of full commuted value। full commuted value कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। फिलहाल आप समझ लो इफ ग्रेचुटी इज नॉट रिसीव्ड देन हाफ, ठीक है। सो कैलकुलेशन कब होगी, व्हेन द एम्प्लॉय इज नॉन गवर्नमेंट एंड फिर आपको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में ग्रेचुटी रिसीव्ड है या फिर नहीं है, ठीक है। दिस इज वन थिंग, दिस इज अबाउट पेंशन, ठीक है। अब जाते हैं किसके केस में, ग्रेचुटी के। आज एक्सप्लेनेशन ले लो। Now we will be talking about gratuity. In case of government employee, it is fully exempt, ठीक है। In case of government employee, it is fully exempt। तो चाहे वो पेंशन का केस हो, चाहे वो नहीं, पेंशन मतलब खाली कम्यूटेड पेंशन की बात करें, अनकम्यूटेड तो सबको टैक्सेबल है, ओके। चाहे वो ग्रेचुटी का केस हो इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखा, ठीक है। एंड वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट रिटायरमेंट नाउ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर क्वेश्चंस, ठीक है। इन केस ऑफ इन अदर क्वेश्चंस ग्रेचुटी जो है वो हमेशा टैक्सेबल होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, gratuity received during the life of employment या working life of employee is fully taxable, है ना। अगर ग्रेचुटी आपको नॉर्मली ऐसे ही मिल रही है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, आप जॉब पे हैं और आपको ग्रेचुटी मिल रही है, इट इज टैक्सेबल। वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेचुटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट रिटायरमेंट ओनली।
जब तक ये क्वेश्चन में दिया नहीं होगा कि आपका एम्प्लॉय रिटायर्ड हुआ है, जब तक आपके क्वेश्चन में दिया नहीं है कि आपका एम्प्लॉय क्या हुआ है, रिटायर्ड हुआ है, तब तक के आप ये सब कैलकुलेशंस को नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है, ध्यान देना है आपको। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट ग्रेचुटी। ठीक है, ग्रेचुटी इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो पहले हम लोग लेंगे कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट। क्वेश्चन में दिया होता है कि पर्सन इज कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट। नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट। ठीक है, अगर कवर्ड है तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग, और अगर कवर नहीं है तो भी लोअर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अगर कवर्ड है तो भी लोअर ऑफ द फॉलोइंग, और नहीं है तो भी लोअर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहीं पर मैं लिख लेता हूं, नंबर 1 मैक्सिमम, जैसा अभी एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए किया था, इसका भी होता है मैक्सिमम 10 lakhs। मैक्सिमम इट इज 10 lakhs। टेन लैक्स ही ना। अगर कवर्ड है तो लास्ट ऑन सैलरी मतलब जो लास्ट मंथ उसके रिटायरमेंट से पहले जो लास्ट राउंड उसकी सैलरी होगी वो इनटू 26 डिवाइड बाय 30, सॉरी 15 डिवाइड बाय 26, दैट इज हाफ, मल्टीप्लाई बाय completed years of service to be round up if more than 6 months। ठीक है, so last on salary multiply by 15 divided by 26 multiply by completed years और ये है एक्चुअल। ठीक है, और नीचे वाले केसेस में भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है, थोड़ा बहुत फर्क है। मैक्सिमम 10 लाख ही है, एक्चुअल भी सेम है, एक्चुअल मतलब एज पर क्वेश्चन, और यहाँ पर है एवरेज 10 मंथ सैलरी। ये क्वेश्चन में दिया होता है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एंड इट इज़ ऑलवेज योर लास्ट ऑन सैलरी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। इसको 15 डिवाइड बाय 30 लेना है, जबकि ऊपर 15 डिवाइड बाय 26 था, और कई लोग इसको हाफ भी लेते हैं क्योंकि 15 डिवाइड बाय 30 इज योर हाफ, मतलब 15 वन जा 15 टू जा 30 होता है, तो इसको हाफ भी लेते हैं। कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, यहाँ पे राउंड अप नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस ही ली जाता है। ओके,
तो एक बार इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले ग्रेचुइटी के साथ में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पेंशन में इतना कुछ नहीं होता। पेंशन में तो गवर्नमेंट के लिए एग्जेम्प्ट है। ये याद रखो कि कम्यूटेड पेंशन और ग्रेचुइटी गवर्नमेंट के लिए तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अनकम्यूटेड हमेशा टैक्सेबल होता है, कोई भी एम्प्लॉय हो, और ग्रेचुइटी ड्यूरिंग द लाइफ इज ऑलवेज टैक्सेबल। ओके, ग्रेचुइटी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, पेंशन भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपको दिया होगा वेदर द पर्सन इज कवर्ड बाय एक्ट और नॉट, और ग्रेचुइटी एक्ट के थ्रू कवर होगा तो इसकी कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करना है। लास्ट ड्रॉन सैलरी लेके इंटू 15 डिवाइड बाई 26 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस आपको लेना है। मोर देन 6 मंथ है तो उसको हम लोग उसको राउंड अप कर देंगे। जैसे अगर 40 ईयर्स एंड 7 मंथ्स उसने काम किया है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको राउंड अप कर देंगे। एकदम एग्जैक्टली 6 मंथ है तो नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे 40 ईयर्स एंड 6 मंथ है तो आप नहीं करेंगे उसको, 41 नहीं करेंगे। अगर 40 ईयर्स एंड 7 मंथ है तो उसको हम लोग 41 कर देंगे, ठीक है, अगर वो कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट है तो। अगर नॉट कवर्ड बाय है या तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप मैक्सिमम 10 लाख एवरेज सैलरी उसकी ले लेंगे, जो कि लास्ट ड्रॉन सैलरी ही होगी उसकी, ठीक है। एवरेज सैलरी मतलब अगर बीच में सैलरी किसी की चेंज होती है तो ऐसा केस होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप उसके ऊपर मत जाओ, आप लास्ट उसकी सैलरी ले लेंगे, जो भी उसकी बेसिक सैलरी होगी उसकी सैलरी होगी वो ले लेना है आपको, और इनटू हाँ 1/2 ले लेना। दैट इज यहाँ पे क्या था 15 डिवाइड बाय 26, तो यहाँ पे क्या था हाफ था, ठीक है। और उसके बाद कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस आप लेंगे। ओके, सो अभी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आपको रीडिंग के लिए काम आएगा, और इसके ऊपर से कल से कुछ क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। ये पेंशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं आगे जाता हूँ, और ये एक पेज पे आना चाहिए। देखो अभी आ गया। ओके, आपको मुझे इस शेयर हटाना पड़ेगा पहले, क्योंकि मुझे गूगल फॉर्म पे जाना है। सो इट इज डिफिकल्ट अगर आप नहीं उसको पढ़ेंगे तो। अगर आपने एक बार केसेस समझ लिया तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग करेंगे, ठीक है। बट आज स्टार्ट भी करेंगे तो काफी हद तक के तुम लोग को समझेगा नहीं, बट फटाफट जाने के बाद भी नहीं समझ पाएंगे हम। क्या अटेंडेंस कहाँ है, अटेंडेंस में सर, सर 1/5 फिक्स रहेगा। हाँ 1 पे काजल बेटा फिक्स रहेगा वो, सारी चीजें फिक्स रहती है, कुछ भी फ्लक्चुएटिंग नहीं। खाली जहाँ पे बोला है बेसिक सैलरी, तो हर क्वेश्चन में बेसिक सैलरी चेंज हो जाएगी आपकी, है ना। बाकी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द सेम, एंड देयर इज गोइंग टू बी पीटीए ऑन दिस सैटरडे। हाँ, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो कि पीटीए है करके, सैटरडे को है। आफ्टर द लेक्चर वी विल कीप, पेरेंट्स कहीं पर भी हैं वहां से उनको अटेंड करना है, और अगर वो अटेंड नहीं कर पाएंगे तो उनको मुझसे पर्सनली बात करनी है, ठीक है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो वो कॉमन मीटिंग में आए, ठीक है। कॉमन मीटिंग में तो आपको पता है सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, और जब स्पेसिफिकली मैं एक एक से मिलूंगा तो फिर आपको एक 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 लोगों, क्योंकि मैंने ध्यान से मैंने सुना है कि जो अच्छे बच्चे हैं उनके ही पेरेंट्स आ जाते हैं,